A very happy new year and a warm welcome to Papa JC Talk Show. It has been an honor, and I must thank all of you to take out time in today's situation where things have completely normalized or almost normalized. Taking out time and attending a webinar is a very, very difficult thing for everybody, I understand, because a practice which was there has been moved away and people are again engaging. It's very interesting, which means the topic was interesting. That's why people have joined. Now, the topic is actually very interesting because everybody wants to meditate. And everybody is finding there is some difficulty which they are not able to cross. So we are trying to understand how to do it. In between, I met up with this friend of mine, Mr. Sanjay Mansukhani, who has been doing a lot of effort on meditation for the last 20 years. He's been working on it. He's trying to do new things and trying to learn from meditation. I believe he has a story which he will share definitely as to how he started meditating, which goes back to the time when he could not achieve and then he went back to the basics. He learned meditation from something called Patanjali Yoga Sutras. When we listen to this term Patanjali Yoga Sutra, we think of Patanjali as a brand that sells things today. But actually, it is originally from a Maharishi Patanjali, who has made these. He has made the first manuscript ever written on this subject called yoga was written by Maharishi Patanjali. So we will listen to his story on this subject. We'll listen to how things go. He has a lot to share. And believe you me, this man is so learned about this particular subject that he can go on and on. So before we go into this, I had requested him to make it. Tarunji, I hope I'm audible. Give me a thumbs up if I'm audible, because Tarunji is not able to hear. Aapka audio theek kar liye, Tarunji. Aapka audio theek kar lijiye, because audible shayad aapke end pe nahi hai, but I think we are audible here. So when we're talking about this subject on meditation, there is a lot that goes into it which we don't know. Perhaps now what is happening is people may have started learning from Patanjali Yoga Sutra and then deviated from that, started making it into a cult, and then completely drifted from that original form. It has become more difficult. People have identified their own methods of training meditation, own methods of teaching. तो एक का दूसरे से बहुत विभिन्न है. आज देखिए बहुत सारे cult है. There are so many names who are heading these meditation and yoga chapter, but everybody is showing it differently. But is it actually achievable? Are we able to achieve it? So let's hear it all. But before I welcome Mr. Sanjay Mansukhani, I must tell you that this man has a lot of knowledge and he's going to give us a great insight into the subject, and he's trying to drive changes. He has a burning desire to make some changes in this world by bringing in meditation to different parts of the world. He wants to do it with his great intent and endeavor. We must all support him and give him a good support. Now, Sanjay ji, before we begin the session, I would like to, I've been doing a little bit of research. So before we begin, I read three things about meditation. One was concentration. The other is meditation. And the third is samadhi. So if you could just throw some light on these three subjects of meditation, and then take it forward to the level next. We would like to hear from them. And also, one more request to clear all the myths that we have. There are so many myths revolving this subject, around this subject, which actually does not give us a clear concept about this subject. So the platform is all yours, sir. We would like to listen to you talk about this subject on yoga and meditation. It's all yours, sir. Yeah. Papa JC, first of all, let me thank you for inviting me to this show and giving me an opportunity to speak on a subject where people want to know but find difficulty in knowing and practicing. And let me tell you, a lot of things can happen. But the three questions you asked are very fundamental questions, and people usually are not clear about it. What actually passes off as meditation in this country
is usually concentration. So let me define these three for you. What is concentration? What is meditation? And what is samadhi? All three of them are connected with concentration, but different states of concentration, different forms of concentration. Normal concentration, it is called dharana. हम जब किसी चीज को धारण कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, that is called concentration. इसमें क्या होता है कि we bring our mind to one place, not one point, not one topic, not one object. We bring our mind to one place. And the mind does not stay there. वो mind आता है, जाता है, आता है, जाता है, distraction होता रहता है. This is concentration. This is dharana. When you keep on doing dharana regularly, then you reach the state of meditation, dhyana. What is dhyana? ध्यान में क्या होता है कि you are concentrated on one thing, one image for a continuous period of time without any distraction. That is meditation. Meditation में कोई दूसरा thought, कोई दूसरा image mind में नहीं आता है. आप एक image को पकड़े बैठे रहते हैं आधा घंटा, एक घंटा. That is meditation. That is ध्यान. समाधि में क्या होता है? समाधि में meditation leads to samadhi. जो आदमी ध्यान में है वो ये भूल जाता है समाधि में कि वो ध्यान कर रहा है. वो ये भूल जाता है कि वो किस पे ध्यान कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट का, उस सब्जेक्ट का नाम क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, वो कहां पर है, खुद समय क्या है. मतलब माइंड को लेके सब गायब हो जाता है. द माइंड डिसअपियर्स. वो है समाधि. So samadhi is the highest level of concentration where the mind drops. Dhyana is the highest level of concentration where you are holding on to one subject, one object without any distraction continuously. And dharana, concentration, is where you are bringing your mind to one place. It is staying there, it is going away, it is coming back. That is dharana, that is concentration. What people call meditation is usually concentration. It is not meditation. Number one, एक कॉमन आदमी के लैंग्वेज में आप कैसे समझेंगे? मान लीजिए मेरे पास दो बर्तन हैं, उसमें पानी है. पानी को मैं एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल रहा हूं, तो पानी का फ्लो कभी कभी टूट जाता है. वो है कॉन्सेंट्रेशन. लेकिन अगर मेरे पास दो बर्तन हैं, उन दोनों बर्तनों में शहद है जो विस्कस है, जो डेंस है, जो गाढ़ा है. अब जब मैं उसको एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालता हूं, उसकी कंटिन्यूटी फ्लो की टूटती नहीं है, वो कंटिन्यूएशन में गिरता रहता है. दैट इज मेडिटेशन. मेडिटेशन में अटेंशन टूटता नहीं है. मेडिटेशन में आप एक चीज को पकड़े रखते हैं विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन. तो जिसको हम ध्यान बोलते हैं वो धारणा है. ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. और जब आप समझने लगेंगे कि आप जो कर रहे हैं वो ध्यान नहीं है, तभी आप ध्यान में पहुंच पाएंगे. और जब आप समझने लगेंगे कि ध्यान क्या है और समाधि क्या है, तब आप समाधि में पहुंच पाएंगे. और तब आपको हकीकत में जो इस देश का योग की विद्या है, जो धरोहर है इस देश का, उसको आप समझ पाएंगे, उसको आप अपने और अपने समाज के भलाई के लिए उपयोग कर पाएंगे. वरना आप सिंपली कंसंट्रेशन कर रहे हैं. वो बच्चा भी करता है एग्जाम देने के लिए 3 घंटा. आप सोच रहे हैं आप मेडिटेशन कर रहे हैं, गुरु के पास बैठे हैं, फीस दे रहे हैं, मंत्र सुन रहे हैं, सब टाइम पास है.
तो अभी मेरी ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से चालू हुई। मैं एक चेन स्मोकर था, दिन में 20 सिगरेट 25 सिगरेट, और मैंने अपने वाइफ को कमिट किया था शादी के पहले छोड़ दूंगा। 9 साल हो गए, नहीं छोड़ पाया, मजबूर। मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को बोला, मैं दिल्ली गया था प्रगति मैदान, उसका स्टॉल था, बोला स्टॉल में बैठ। मेरे पीठ के पीछे उन्होंने कुछ किया, मेरे रीढ़ की हड्डी में करंट दौड़ रहे थे। बोला क्या कर रहे हो? बोला आपका आत्म साक्षात्कार कर रहे हैं। मुझे पता ही नहीं ये शब्द क्या होता है। और 2 दिन में मेरी सिगरेट छूट गई, जो कि मैं 9 साल से छोड़ने की कोशिश करता था। उन्होंने मेरे को एक साधना बोली, करो। मैंने साधना करी। 6 महीने में मेरे अंदर अनंत नाद बज रहा था, सितार, मृदंगम, झरना, घंटियां, घंटे, मधुमक्खियों की आवाज। मैंने उसको फोन किया दिल्ली, मैंने कहा भैया क्या है? बोला मुझे नहीं मालूम, ब्लड प्रेशर चेक कराओ। मैंने घूमना चालू किया, साइकेट्रिस्ट के पास गया, मैंने कहा अंदर आवाज हो रहा है। बोला एमआरआई कराओ, कुछ नहीं आया। गुरुद्वारे गया, ज्ञानी मेरे को बोला ये तो अनंत नाद है, ये तो नानक भी सुनता था, फरीद भी सुनता था, तुम क्या प्रैक्टिस करते हो? मैंने कहा मैं ध्यान करता हूं। बोले कौन सा ध्यान करते हो? कोने में ले गया मेरे को। मेरी वाइफ ही बड़ी चिंतित थी। मेरे वाइफ को बोला आपका कुल का कुल पार हो जाएगा, आप जाइए। कुछ दिनों के अंदर मेरे अंदर एग्रेसिव बिहेवियर आ गया। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप प्रैक्टिस कर रहा था, विदाउट एनी कंट्रोल। कोई गुरु साक्षात सामने नहीं थे जो गाइड कर रहे थे। किसी ने कहा कि राजयोग प्रैक्टिस करिए, मेडिटेशन करिए, प्रॉपर मेडिटेशन करिए, ये सिस्टम में करिए, ये आश्रम जाइए, ये गुरु बनाइए। पहुंच गए, किया। वहां से मेरी ये जर्नी चालू हुई, और मैंने देखा कि चमत्कारी तौर पे एक सिगरेट एडिक्ट जो 16 साल से चेन स्मोकर था, उसका 2 दिन में सिगरेट छूट गई, और उसके अंदर 6 महीने में अनंत नाद बच गया, जो कि एक स्पिरिचुअल अटेनमेंट है। जो कहते हैं जब हार्ट का चक्कर खुलता है, अनर्ट का चक्कर खुलता है, तब ये बचता है। मैं सोच में पड़ गया। मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी टॉपर। मैंने कहा यार ये क्या चीज है? खोजना चालू किया, तब पतंजलि योग सूत्र मुझे मिला। पतंजलि एक महर्षि हैं जिन्होंने अंदाज से 2000 से 2500 साल पहले, एग्जैक्ट मालूम नहीं हमको कि वो कब थे, उन्होंने ऋग्वेद से लेकर जितने वेद थे, जितने उपनिषद थे, जो भी महाभारत में योग के बारे में कृष्ण ने कहा, जो भी सांख्य फिलॉसफी में कपिल मुनि ने कहा, उन सब को उन्होंने जमा किया और उसका संग्रह किया। उन्होंने 196 सूत्र लिखे, और उन सूत्रों का नाम हुआ पतंजलि योग सूत्र। अबे पतंजलि कौन? ये आज तक कोई नहीं जानता है कि पतंजलि कौन, बट कुछ कहानियां हैं। ये कहते हैं कि ये जो पतंजलि हैं, ये महर्षि पतंजलि, ये शेषनाग के अवतार हैं, ये कृष्ण के शैया हैं। और कहानी ये है कि एक दिन ये विष्णु उनके ऊपर लेटे हुए थे, और विष्णु सडनली बहुत 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 भारी हो गए। इतने भारी हो गए कि शेषनाग संभाल नहीं पा रहे थे विष्णु को, और सडनली विष्णु हल्के हो गए। शेषनाग पूछा झटके से क्या हुआ? बोले मैं शिव का नाच देख रहा था धरती पे, ऐसा वो नाचे हैं कि मेरा मन मुग्ध हो गया। बोले आप इतने भारी हो गए? बोले हाँ। तो शेषनाग बोला मुझे भी देखना है ये शिव का नाच। बोला उसके लिए तुमको धरती पे जाना होगा। बोला ठीक है, मैं अवतार लूंगा धरती पे। तो कहते हैं शेषनाग ने एक योगिनी को खोजा जो बच्चा चाहती थी, और एक दिन वो हाथ अपने खोले, अंजलि दिए, सूरज देवता को बच्चा मांग रही थी। तो शेषनाग उसके हाथों में गिरा, छोटा सांप बन गया। उसको बोला हे मां, मुझे तू अपना बालक बनाएगी? वो बोली हाँ। उसके सामने वो आधा सांप और आधा इंसान का रूप उसने ले लिया। उसका नाम हुआ पत अंजलि। पत मतलब जो गिरा ऊपर से, अंजलि मतलब अंजलि में। इस पतंजलि का इतना बड़ा योगदान है कि जो संस्कृत ग्रामर है उसकी कमेंट्री पूरी की पूरी पतंजलि की हुई है। जो आयुर्वेद है उस पे बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है, इनकी इस पे भी एक बहुत बड़ी कमेंट्री है। और ये जो सूत्र हैं योग के, इसमें इन्होंने क्या किया? इन्होंने गजब का काम किया। इन्होंने इसके 4 चैप्टर बनाए। पहला चैप्टर है समाधि, दूसरा चैप्टर है साधना,
तीसरा चैप्टर है विभूति, विभूति मतलब सिद्धियां, और चौथा चैप्टर है केवल्य, केवल्य मतलब मुक्ति। तो उन्होंने कम से कम शब्दों में 196 सूत्रों में, जो कि आप 2 A4 साइज के पेज में लिख सकते हैं, पूरा 7000 साल का योग का साइंस उन्होंने उतार दिया। ऐसा उतारा कि लोगों को समझ में नहीं आया कि इन्होंने क्या लिखा। तो उसके ऊपर भाष्य हुए, कमेंट्री हुए। सबसे पहला भाष्य, सबसे पहला कमेंट्री किया व्यास ने, उसके बाद किया विज्ञान भिक्षु ने, उसके बाद हमारे शंकराचार्य ने भी किया, और आज से करीबन 100 साल पहले हरिहरंद ने किया, बहुतों ने किया, 7-8 लोगों ने किया, अलग अलग तरीकों से किया। और बौद्ध धर्म उस समय बहुत जोरों पे था। बौद्ध धर्म रुक गया पतंजलि के इन योग सूत्रों के कारण, क्योंकि इनको लगा, पतंजलि को, कि ये जो ज्ञान है इस देश का हजारों सालों का, ये खो जाएगा, ये नीचे नहीं जाएगा हमारे आने वाले पीढ़ियों में, ये हजारों साल तक जाना चाहिए, ये इनवैल्यूएबल नॉलेज है। ये नॉलेज वो है जो कि प्रकृति को अपने बस में करता है। ये नॉलेज वो है जो कि पूरे साइंस के नियमों को तोड़ देता है, घुमा देता है। तो उन्होंने लिखा इसको, और उसके ऊपर कमेंट्रियां हुई। पहला जो उनका चैप्टर है समाधि, उसमें उन्होंने समझाया कि योग क्या है, योग को डिफाइन किया, और फिर उन्होंने समझाया कि समाधियां किस प्रकार की होती हैं। उन्होंने समझाया कि एक बिगिनर को समाधि में कैसे जाना चाहिए। उन्होंने समझाया कि सबसे सरल तरीका योग करने का क्या है, जो कि एक साधारण से साधारण आदमी कर सकता है। लेकिन फर्स्ट चैप्टर पूरा का पूरा ध्यान पे था, उसका फोकस था कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, समाधि। सेकंड चैप्टर में साधना का चैप्टर, कि अब इसको करने का तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है। उसमें उन्होंने चालू किया क्रिया योग से। क्रिया योग मतलब एक्शन का योग, क्रिया मतलब एक्शन। तो क्रिया योग में मजे की बात यह है कि ध्यान का जिक्र ही नहीं है। आपको ध्यान करने की जरूरत नहीं है समाधि पे जाने के लिए, वो है क्रिया योग। और अगर आपको ध्यान के मार्ग से जाना है, तो उन्होंने उसी साधना पद में दूसरा लिखा, अष्टांग योग, 8 कदमों वाला योग, 8 स्टेप वाला योग। वो जो 8 स्टेप वाला योग है, उसमें धारणा, ध्यान और समाधि है। लेकिन वो भी देखिए ताज्जुब की बात, मजे की बात, साधना वाले चैप्टर में जो 8 स्टेप है, उसके आखिरी 3 स्टेप है कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, समाधि। उन्होंने उन 3 का जिक्र नहीं किया, उन्होंने सिर्फ पहले 5 का जिक्र किया। मतलब आप अष्टांग योग में भी, साधना भी जो करेंगे, आप अगर ध्यान नहीं करना चाहते हैं, मत करिए, आपकी समाधि पे समाधि लगेगी। वो बोले थर्ड चैप्टर में सिद्धियां, और ऐसी ऐसी सिद्धियां कि हम लोग का माथा जगह से हिल जाए। एक योगी खड़ा होके चांद को छू सकता है, एक योगी छोटा होके धरती के अंदर घुस के धरती के दूसरे छोर से पार हो सकता है, एक योगी हवा में उड़ सकता है, एक योगी पानी में चल सकता है, एक योगी चाहे तो 5 किलोमीटर दूर 2 आदमी क्या बात कर रहे हैं वो सुन सकता है, एक योगी चाहे तो सामने खड़े हुए हाथी की पूरी ताकत ले सकता है। अद्भुत से अद्भुत, और पूरा साइंटिफिक है, पूरा उसमें एक्सप्लेनेशन है, उसकी पूरी थ्योरी सांख्य की थ्योरी पे है, जो कि कपिल मुनि ने लिखा पतंजलि से भी 1200-1500 साल पहले। और ये हमारे लिए बहुत बदनसीबी है इस देश का कि जो कपिल मुनि ने इसकी साइंस लिखी वो खो गई, कपिल मुनि के सूत्र गायब हो गए। लेकिन फिर भी पतंजलि के करीबन 1000 साल बाद एक सज्जन ने खोजना चालू किया, और उन्होंने सांख्य के ऊपर 70 सूत्र बनाए, खोज के। वो थ्योरी उन्होंने खड़ी करी जिसपे योग खड़ा है, और ये दोनों के दोनों आज हैं हमारे पास। सांख्य की जो थ्योरी है वो सांख्य कारिका के नाम से है,
पतंजलि की जो थ्योरी है वो पतंजलि योग सूत्र के नाम से है। वेस्टर्न वर्ल्ड आज भी घबराता है ये सोच के कि ये कैसे संभव है, और जो सिद्धियां, छोटी सिद्धियां हैं, वो वेस्टर्न वर्ल्ड में पाई जाती हैं, वो उनके लैबोरेटरीज में चेक होती हैं। तो उनके साइंटिस्ट बोलते हैं कि जब छोटी सिद्धियां प्रूव हो रही हैं तो बड़ी भी अवश्य प्रूव होंगी। हमको सबूत नहीं मिल रहे, हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं, हम इनकी थ्योरी नहीं समझे। मतलब इस गजब के लेवल का ये साइंस है, और ये यहां भी खत्म नहीं होता है। चौथे चैप्टर में, जो कि केवल्य का चैप्टर है, उसमें वो समझाते हैं कि आप जीवन मरण के साइकिल से मुक्ति कैसे पाएं, आपको पूरा दुनिया का, पूरा जगत का ज्ञान कैसे मिले, आप सबसे शक्तिशाली कैसे बने, आप काल को, समय को अपने मुट्ठी में कैसे करें। और क्योंकि ये इतना लॉजिकली प्रेजेंटेड है, क्योंकि ये इतना प्रोसेस से प्रेजेंटेड है, क्योंकि ये इतना रैशनली प्रेजेंटेड है कि कोई इसको चैलेंज नहीं कर पा रहा है। ये है पतंजलि के योग। मैं आज आपके सामने इसका जो पहला चैप्टर है और जो इसका स्टार्टिंग के सूत्र है, जो सिंपल तरीके से मेडिटेशन का इंट्रोडक्शन मैं आपको करना चाहता हूं, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये एक ऐसा शास्त्र है जो सिंपल स्टेप से लेके अंतिम पड़ाव तक ले जा सकता है। अब ये आपकी इच्छा है कि आप कितना चलना चाहते हैं, किस हद तक जाना चाहते हैं, अपने लिए क्या करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए क्या करना चाहते हैं, अपने देश, अपने समाज के लिए क्या करना चाहते हैं। क्योंकि ये सत्ता है, ये ताकत है। माइंड इज पावर। जितना आपका कंसंट्रेशन का एबिलिटी बढ़ेगा उतना आपका पावर बढ़ेगा, और जितना आपका पावर बढ़ेगा उतना आपकी अचीवमेंट बढ़ेगी लाइफ में, उतना आपका सक्सेस बढ़ेगा लाइफ में, उतना आपका धन बढ़ेगा लाइफ में। क्योंकि धन संभालना भी एक सत्ता है, एक माइंड का पावर है। हर आदमी नहीं संभाल सकता, गरीब आदमी नहीं संभाल सकता। तो माइंड का पावर एक बेसिक नेसेसिटी है एक सक्सेसफुल सोसाइटी के लिए। माइंड का पावर एक बेसिक नेसेसिटी है एक सक्सेसफुल आदमी के लिए। माइंड का पावर एक बेसिक नेसेसिटी है एक साइंटिस्ट के लिए। माइंड का पावर एक बेसिक नेसेसिटी है इनोवेशन के लिए। माइंड का पावर एक बेसिक नेसेसिटी है इनोवेशन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए। और इसमें कोई खर्चा नहीं है, आप अपने अंदर वर्क करते हैं, अपनी एबिलिटी बढ़ाते हैं और बाहर जादू होने लगता है। और ये हमारे देश का ज्ञान है, ये हमारे पूर्वजों का ज्ञान है। ये जो देश है ये योगियों का देश है। यहाँ पे ऋषि हुए, महर्षि हुए, ब्रह्म ऋषि हुए, देव ऋषि हुए, सप्त ऋषि हुए। यहाँ के हमारे शिव जो है वो परम योगी माने जाते हैं। यहाँ के कृष्ण को हम योगेश्वर बोलते हैं। उन योगियों के देश में आज हमको सोचना नहीं आता है, हमको ध्यान करना नहीं आता है, हम भटके हुए। तो सिर्फ एक शास्त्र है, वो है पतंजलि का योग सूत्र, जो ऑथेंटिक तरीके से, ओरिजिनल तरीके से, विदाउट बायस आपके सामने फैक्ट, ट्रुथ और रियलिटी को पेश करता है। शॉर्ट, स्वीट, स्ट्रेट। मैं आपके सामने वही लेके आया, वही पतंजलि के सूत्र। इस पतंजलि को कोई जानता भी नहीं है, कौन है, कहां है, कौन था, इसके माँ बाप कौन थे, इसका जात क्या है। एक कहानी है कि शेषनाग के अवतार है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहला सूत्र क्या है। पहला सूत्र पतंजलि का ये बोलता है, अथ योग अनुशासनम। अथ मतलब अभी, योग मतलब फिलहाल हम योग को योग ही पकड़ लेते हैं, हम तो ठीक से जानते भी नहीं है योग क्या है। लोग सोचते हैं आसन करना योग है, लोग सोचते हैं जिम्नास्टिक्स करना योग है। योग है वो, लेकिन वो योग नहीं है। और लोग तो पतंजलि के नाम पे धंधा करते हैं इस देश में। वो कहते हैं अथ
योग अनुशासनम, इसके दो मतलब है। एक मतलब है शासन, मतलब है टीचिंग, अनु मतलब है पहले से आ रहा है। तो एक इंटरप्रिटेशन ये है कि पतंजलि ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं जो प्रेजेंट कर रहा हूं ना, ये मेरा नहीं है, ये पहले से है। और ये फैक्ट है, क्योंकि योग का वर्णन सबसे पहले जो रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट है वो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद को तकरीबन 7,000 साल हो गए, और उसके बाद में उपनिषदों में है, बाकी वेदों में है, महाभारत में तो कृष्ण ने खुल के बात करी है सांख्य के ऊपर और योग के ऊपर। उन सब को संग्रह किया है इसने कि आने वाले जनरेशंस का कोई नॉलेज मिले, ये नॉलेज वेस्ट नहीं हो जाए, ये नॉलेज लॉस्ट नहीं हो जाए। अब दूसरा मीनिंग क्या है? दूसरा मीनिंग यह है कि योग जो है एक अनुशासन है, एक डिसिप्लिन है, और ये अभी है। मतलब योग हैज टू बी प्रैक्टिस्ड इन द नाउ। हर पल, हर क्षण, हर मोमेंट आप योग में हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये योग क्या है जिसकी पतंजलि बात करता है? योग को कैसे डिफाइन करता है पतंजलि? वो सेकंड सूत्र में डिफाइन करता है। आप देखिए इस देश की सोच क्या है, आप सोच देखिए। मतलब मैं तो अंदर से कांप जाता हूं सुन के, ये सोच के। वो कहते हैं दूसरे सूत्र में, योग डिफाइन कर रहे हैं वो, योग चित्त वृत्ति निरोध। ये निरोध शब्द है, मैंने जवानी में सुना था कॉन्डोम के लिए। भारत सरकार का कॉन्डोम 25 पैसे में 3, ये निरोध मैं जानता था। और यह पतंजलि में जब डिफाइन किया तब मैंने दूसरी बार निरोध शब्द सुना। मैं बोला यार ये योग की डेफिनेशन में निरोध क्या कर रहा है? वो कहते हैं योग चित्त, योग का संबंध चित्त से है, योग का संबंध आपके मन से है। हम सोचते हैं योग का संबंध हमारे शरीर से है, 2 टांग उठा के खड़े हो गए, उल्टा सुल्टा जिम्नास्टिक्स कर लिया तो योग हो गया। अब ये चित्त क्या है? मन भी बोल सकते थे, चित्त बोला है। चित्त का मतलब बुद्धि, अहंकार और मन, ये तीनों कॉम्बिनेशन में योग के हिसाब से चित्त है। और वृत्ति क्या है? वृत्ति मतलब चेंज, फ्लक्चुएशन, आपका माइंड में चेंज आना। जब भी आपके माइंड में चेंज आया मतलब वृत्ति आई। जब भी आपके माइंड में थॉट आया मतलब फ्लक्चुएशन आया, कुछ चेंज हुआ माइंड में, वो वृत्ति आई। जब भी आपके माइंड में कुछ मॉडिफाई हुआ, वृत्ति आई। अब निरोध मतलब रोक देना, स्टॉप कर देना, कंट्रोल कर देना, सबड्यू कर देना वृत्ति को। इसका मतलब योग वो है जब आप अपने मन में कोई बदलाव आने नहीं दें। आपके मन में अगर बदलाव आया तो योग नहीं हुआ। और आपका मन अगर शांत है, चुप है मन, स्टिल है मन, साइलेंट है मन, काम है मन, तो आप योग में। मान लीजिए आप वॉक कर रहे हैं, आपका मन शांत है, आप योग में हैं। आपको तो किसी ने बताया नहीं, आपको तो बोला योग करना है तो टांग उठाओ, पांव उठाओ, आपको तो बोला ध्यान में बैठ जाओ, आपको बोला मंत्र का जाप करो। जब भी आपका मन शांत है, स्थिर है, स्टेडी है, काम है, साइलेंट है, पीस में है, आप योग में हैं, परफेक्ट योग में है। और अगर आपके माइंड में फ्लक्चुएशन हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, वेरिएशन हुआ, थॉट आया, तो आप अशांत हैं,
आप योग में नहीं है। ये सिंपल डेफिनेशन याद कर लीजिए, बांध लीजिए, आप जीवन भर योग में बैठ सकते हैं। दूसरा डेफिनेशन क्या है योग का? योग के कई डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन है योग का मिलना, जुड़ना, एक हो जाना, ज्वाइनिंग, जोग, एडिशन, 2+2=4, 2+2=4, मिलना, वो योग। अरे किसका किससे मिलना? किसकी बात हो रही है यहां पे? कौन किससे मिल रहा है? जब आप अपने अंदर के भगवान से मिलते हैं, वो योग है। जब आप एज एन इंडिविजुअल पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं, आपका मन एक हो जाता है, टोटलिटी में चला जाता है, वो योग है। जब आपका फाइनाइटनेस आपके इनफाइनाइटनेस से मिल जाता है, वो योग है। जब आपका लिमिटेड पावर अपने अंदर एक अनलिमिटेड पावर को पाता है, वो योग है। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों डेफिनेशन को जोड़ते हैं। जब भी आप शांत हैं, आपके अंदर भगवान है। जब भी आप शांत हैं, वो ब्रह्मांड आपके अंदर आके बैठा है। जब भी आप शांत हैं, आपका पावर इनफाइनाइट हो गया है। जब भी आप शांत हैं, आप अनलिमिटेड डोमेन में चले गए हैं। अब बताइए, किसी गुरु की जरूरत है आपको? कोई कोर्स करने की जरूरत है? कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत है? मंदिर में जाने की जरूरत है? सेकंड सूत्र में ये बोलता है, 196 सूत्र हैं। सेकंड सूत्र में ये महर्षि बोलते हैं, पतंजलि, योग चित्त वृत्ति निरोध। मन के अंदर उथल पुथल को सुला दो, खत्म कर दो, योग हो जाएगा। तीसरा सूत्र, तीसरा सूत्र में बोलते हैं कि जब मेरे मन शांत हो जाता है, जब मेरी मन की सारी वृत्तियां चुप हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, तब क्या होता है? बोलता है तब स्वरूप का दर्शन होता है। तब आप अपना दर्शन करते हो। आप अपना दर्शन करते हो, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी आत्मा का दर्शन कर रहे हो, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं। जब आपका मन शांत हो गया, आपके मन में थॉट्स नहीं है, जब थॉट्स नहीं है मतलब मन गायब हो गया, माइंड डिसअपियर हो गया। तो जब थॉट्स ही गायब हो गए, मन ही गायब हो गया, चित्त ही गायब हो गया, तो क्या बचा? हम तीन चीजों से बने हुए हैं, स्पिरिट, माइंड, मैटर। माइंड डिसअपियर हो गया तो क्या बचा? स्पिरिट और मैटर। अब आपका शरीर जो देख रहा है, वो अपनी आत्मा को देख रहा है। आत्मदर्शन बोलते हैं इसको, आत्म साक्षात्कार बोलते हैं इसको, सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं इसको, गॉड रियलाइजेशन बोलते हैं इसको। तो थर्ड सूत्र में, मात्र थर्ड सूत्र में, वो आपको ईश्वर का दर्शन करा देते हैं। बोलते हैं आपकी जो आत्मा है ना, उसका दर्शन हो जाएगा। आप खुद देख लोगे, आप अपने आप को देखोगे, क्योंकि आप आत्मा हो। और आत्मा को छोड़ के बाकी जो भी है वो प्रकृति है। चौथे सूत्र में वो ये बोलते हैं कि जब आपका मन शांत नहीं है, तब क्या है?
बोलता है तब आपकी जो आत्मा है ना, वो जो थॉट्स लेके आप बैठे हो वो देखती रहती है, उसमें उलझ जाती है, वो पिक्चर देखती है फिर वो। इन 4 सूत्रों में पूरा योग खत्म है। लेकिन ये आपको समझाया नहीं जाएगा, क्योंकि ये समझाया जाएगा ना तो जैसे हमारे पापा जैसी ने बोला कि $1 बिलियन बिजनेस वो खत्म हो जाएगा। अब सवाल उठता है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल उठता है। सवाल ये उठता है कि मान लो मेरे अंदर में वृत्तियां आ रही है, थॉट्स आ रही है, मेरा माइंड फ्लक्चुएट हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है, इसको मैं कैसे कंट्रोल करूं? इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है? क्योंकि अब तो हमको समझ में आ गया कि मेरे को अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है बस, और कुछ करना ही नहीं। और हम अपने जीवन में कई बार ये साइलेंस, ये पीस एक्सपीरियंस करते हैं। कई बार हम उस योग की अवस्था में जाते हैं, कई बार हम अपने अंदर अपनी आत्मा का दर्शन करते हैं, लेकिन हमको किसी ने बताया ही नहीं कि ये आत्मा है। हम तो सोचते हैं आत्मा दर्शन मतलब भगवान बनना पड़ेगा, बहुत बहुत साधना करनी पड़ेगी, साधु बनना पड़ेगा, जीवन में संभव नहीं है आत्मा का दर्शन। ये संसार है, यहाँ झूठ बोलना पड़ता है या मक्कारी करनी पड़ती है, दुनिया भर के हमारे पास रीजन है। और फिर भी हम डेली डेली बेसिस पे हम अपने अंदर शांति एक्सपीरियंस करते हैं, डेली हम अपने अंदर योग का दर्शन करते हैं, डेली हम अपने अंदर अपनी आत्मा को देखते हैं, परखते हैं, उसके साथ बैठते हैं। उसी टाइम को एक्सटेंड करना है बस। तो जब आपने समझ लिया कि करना क्या है, अब अपने आप रास्ता निकलेगा। रास्ता भी पतंजलि बताते हैं। थोड़ा सा मैं कूदता हूं, मैं 11वें 12वें सूत्र पे आ जाता हूं। 11वें 12वें सूत्र में वो बोलते हैं कि वृत्तियों को घटाने के 2 तरीके हैं। अब ये 2 तरीके फर्स्ट चैप्टर में बोल रहे हैं, ये दिमाग में रखिए। अभी बंदा पढ़ना चालू किया है सूत्र, आगे बहुत तरीके बोलेंगे, गजब गजब तरीके बोलेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में वो बहुत सिंपली प्रेजेंट करते हैं। वो कहते हैं कि 2 तरीके हैं, एक अभ्यास और एक वैराग्य। अभ्यास क्या है? कहता है कि आप प्रैक्टिस करिए मन को एक जगह लगाने का, ये अभ्यास है। और वैराग्य क्या है? जिन चीजों पे आपकी इंद्रियां दौड़ती हैं उसको कंट्रोल करिए, वो वैराग्य है। तो हम वैराग्य पे नहीं जाते हैं, क्योंकि पतंजलि का टोटल फोकस जो है वो मन पे है। वो साइकोलॉजी की बहुत सॉलिड किताब है, इतनी गहरी किताब है, आपके जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर देगी, एक एक प्रश्न का उत्तर देगी आपको। तो अब सवाल उठता है कि मन को एक जगह लगाने का, मन को एक जगह लगाने की बात हो रही है, ये ध्यान की बात नहीं हो रही है, कंसंट्रेशन की बात हो रही है। माइंड को एक जगह लेके आओ, बस एक जगह, एक पॉइंट पे नहीं, एक ऑब्जेक्ट पे नहीं, एक सब्जेक्ट पे नहीं, लंबे ड्यूरेशन के लिए नहीं, माइंड को एक जगह लेके आना चालू करो। तो बोलते हैं सबसे सरल तरीका बताता हूं माइंड को एक जगह लेके आने का। बोलते सोच के देखो, प्रपोजल है उनका। अब बताइए, महर्षि पतंजलि हमको प्रपोजल दे रहे हैं कि कंसिडर, यू मे कंसिडर, बोलते हैं ईश्वर। तो पहली बार 23वें सूत्र में ईश्वर को डालते हैं। मैं थोड़ा और कूद के आ गया है। कहते हैं ईश्वर के लिए एक शब्द यूज करते हैं, मैंने वो शब्द पहली बार पढ़ा, प्रणिधाना। ईश्वर प्रणिधाना।
और मैं लेक्चर लेता हूं पतंजलि योग सूत्र में, मैं बोलता हूं ईश्वर प्रणिधाना मतलब समर्पण करना, भक्ति करना, अपना पूरा ईश्वर पे दे देना, पूर्ण विश्वास करना। तो किसी ने मेरे से पूछा, एक लेडी ने, सर ये प्रणिधाना शब्द का डिक्शनरी मीनिंग क्या है? पहली बार मैंने खोल के देखा कि क्या है भाई। मैंने किसी किताब में पढ़ा नहीं था, मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं पतंजलि में, कुछ वीडियोस देखे हैं स्वामियों के, बड़ा बड़ा गजब का मीनिंग था। मीनिंग था कमिटमेंट, ईश्वर के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए। जिस प्रकार का कमिटमेंट आपका अपने बच्चे के लिए है, जिस प्रकार का कमिटमेंट सूरज का धरती के लिए है, जिस प्रकार का कमिटमेंट चांद का धरती के साथ है, छोड़ के नहीं जाता है वो कमिटमेंट। और सेकंड चैप्टर में, साधना के चैप्टर में, जब वो बात करते हैं क्रिया योग की, तब कहते हैं ईश्वर प्रणिधाना, दोबारा सेम चीज यूज करते हैं। अब बोलते हैं जरूरी है, ईश्वर के प्रति कमिटमेंट जरूरी हो गई सेकंड चैप्टर में। और जब अष्टांग योग में आते हैं, कहते हैं जरूरी है ईश्वर के प्रति कमिटमेंट। कहता है योगी योग कर नहीं सकता बिना ईश्वर के, आप जीवन में तरक्की कर नहीं सकते बिना ईश्वर के। फिर और आगे बढ़ते हैं, साधना के चैप्टर में अंतिम जब जगह आती है, तब कहते हैं कि अगर आप ईश्वर के प्रति प्रणिधाना नहीं करेंगे, कमिटमेंट नहीं करेंगे, आपकी समाधि नहीं लगेगी। उसका लॉजिक देते हैं, ऐसा तगड़ा लॉजिक देते हैं। कहते हैं कि आप जितने भी तरीके लगा रहे हैं ना साधना के, सब प्रकृति के अंदर है, और ईश्वर जो है वो प्रकृति के बाहर है। तो आपको तो प्रकृति से मुक्ति चाहिए, आपको तो प्रकृति को काबू में करना है। तो प्रकृति को काबू में करना है, प्रकृति से मुक्ति चाहिए, तो प्रकृति के साधनों से नहीं हो सकती है। इसका मतलब आपको जीवन में कुछ भी करना है अच्छे लेवल पे, दमदार लेवल पे, हटके, जो दुनिया सलाम ठोके आपको, तो आपको ईश्वर के प्रति कमिटमेंट देना होगा। कमिटमेंट मींस कमिटमेंट। भक्ति की बात नहीं हो रही है, समर्पण की बात नहीं हो रही है, प्रेम की बात नहीं हो रही है, कमिटमेंट की बात हो रही है। और सेम कमिटमेंट वो 3 बार 4 बार यूज करते हैं, और कोई शब्द का प्रयोग ही नहीं करते हैं ईश्वर के लिए। अब वो ईश्वर को डिफाइन करते हैं। मजे की बात देखिए, ईश्वर की डेफिनेशन सुनिए पतंजलि की। ना ये हिंदू है, ना ये मुसलमान है, ना ये सिख है, ना ये ईसाई है, ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है ईश्वर की। और ईश्वर बिठाया जा रहा है हमारे माइंड में, हमारे साइकी में, डिफाइन करके। कहते हैं जो ईश्वर है ना, उसके संस्कार नहीं होते, ईश्वर जो है उसका कार्मिक अकाउंट नहीं होता, ईश्वर जो है उसके क्लेश नहीं होते, ईश्वर जो है वो परम पुरुष है, ईश्वर जो है वो स्पेशल सोल है, ईश्वर जो है वो प्रकृति के अंदर से नहीं जाता, ईश्वर जो है वो डायरेक्ट आता है, ईश्वर जो है वो चेंजलेस है, ईश्वर जो है वो इटर्नल है, और प्रकृति जो है वो चेंजिंग है। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि ये ईश्वर के संस्कार नहीं होते, संस्कार क्या है? ईश्वर का कार्मिक अकाउंट नहीं होता, ये कार्मिक अकाउंट क्या है? ईश्वर के क्लेश नहीं होते, ये क्लेश क्या है? तो मैं आपको समझाता हूं, एक एक शब्द समझाता हूं आपको। हम जो है ना बहुत स्पेशल क्रीचर्स हैं। जो भी हम सुनते हैं, देखते हैं, करते हैं, जो भी हमारी इंद्रियां अंदर लेती हैं, 5 दरवाजों से, 5 इंद्रियां हैं हमारी, वो रिकॉर्ड होता है। पहले वृत्ति आती है। मान लीजिए मैं सड़क पे चल रहा हूं, सड़क पे गाड़ियां पार्क हैं, मैं नोटिस नहीं कर रहा, मेरी इंद्री से अंदर आ रहा है लेकिन नोटिस नहीं हो रहा है, वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने एक लाल रंग की गाड़ी देखी, मुझे बहुत पसंद आई, वो रिकॉर्ड हो गई।
उसकी बनी वृत्ति, वो थॉट आया, रजिस्टर हुआ, वो माइंड का फ्लक्चुएशन हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ। अब वही वृत्ति दोबारा आए तो वो बनती है संस्कार। अब वो डीप साइकिक इम्प्रिंट बनता है, वो मेरे चित्त में, मेरे माइंड में वो डीप इंप्रेशन बनता है, वो मेमोरी बनती है। संस्कार अगर बार बार आए वो वासना बनती है, एडिक्शन बनता है। वासना अपने आप से संकल्प पैदा करता है, विल पावर पैदा करता है, और वो विल पावर जो पैदा होती है वो कर्म को पैदा करता है, कर्म आता है, और जो कर्म आता है वो वापस वृत्ति पैदा करता है, और वृत्ति फिर संस्कार, संस्कार वासना, संकल्प, कर्म। इसको बोलते हैं संसार, इसको बोलते हैं जीवन। ऐसा चलता है जीवन, वृत्ति, संस्कार, वासना, संकल्प, कर्म, ये चलता है जीवन। तो ये सब रिकॉर्डिंग कहां हो रही है? चित्त पे हो रही है। कर्म का एक्शन कहां हो रहा है? शरीर के माध्यम से बाहर संसार में हो रहा है, जगत में हो रहा है। तो ईश्वर के संस्कार नहीं है। इसका मतलब ईश्वर का कोई मेमोरी रिकॉर्डिंग नहीं है, ईश्वर का कोई चित्त नहीं है, ईश्वर कोई कर्म नहीं करेगा, ईश्वर दुनिया में नहीं है। तो आपको संस्कार भी समझ में आ गया और कर्म भी समझ में आ गया। अब आइए क्लेश पे। योग के रास्ते पे जो ऑब्स्टिकल है, जो दिक्कत है, उसको क्लेश बोलते हैं। 5 क्लेश है। 5 में से सबसे इंपॉर्टेंट एक क्लेश है जो बाकी चारों को पैदा करता है। ये जो क्लेश है जो बाकी चारों को पैदा करता है, जो मदर क्लेश है, उसको बोलते हैं अविद्या, अज्ञानता, इग्नोरेंस, लैक ऑफ नॉलेज। हमको क्या चीज की इग्नोरेंस है? हमको क्या चीज की लैक ऑफ नॉलेज है? हम हैं महाबेवकूफ। हम अपने आप को समझते हैं ये मन और ये शरीर, जबकि हम हैं आत्मा। जिस दिन हमें समझने लगेंगे कि मैं हूं आत्मा, मैं ना हूं ये शरीर, ना हूं ये बुद्धि, ना हूं ये अहंकार, ना हूं ये मन, ना हूं ये चित्त, वहां से आपके जीवन के सारे प्रॉब्लम गुम हो जाएंगे। तो ये इग्नोरेंस, ये अविद्या, ये अज्ञानता सबसे पहले किसको पैदा करती है? ईगो को। तो अगर आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप आत्मा है, आपकी ईगो नहीं रहेगी, आत्मा इटर्नल है, आत्मा एवर है, आत्मा चलती रहती है। आप और हम सब एक कॉस्मिक जर्नी में है भाई। पता नहीं कब, कितने हजारों, लाखों, करोड़ों साल पहले से हम चल रहे हैं, शरीर पलट रहे हैं और धरती पे पहुंचे हैं हम सब के सब। ये शरीर हम औरों को देखते हैं पैदा होता हुआ, मरता हुआ, तो हम सोचते हैं कि हम मर रहे हैं। हम ना पैदा हो रहे हैं ना मर रहे हैं, हम आत्मा है। दूसरा क्या है क्लेश? अट्रैक्शन, राग। कुछ चीजें हमको पसंद आ जाती है, हम चिपक जाते हैं उससे, हमको मोह हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है, मोह हो जाता है। तो किसी किसी चीजों से हमको हेट्रेड भी हो जाता है, अवर्षण हो जाता है, नफरत हो जाती है। तो ये कहां से आता है? ये ईगो से आता है। ये भी गायब हो जाता है। और इंसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है मृत्यु का भय। मृत्यु का भय क्यों है? क्योंकि सोचता है मैं पैदा हो रहा हूं, मर रहा हूं। जब उसको मालूम पड़े कि मैं आत्मा हूं, मैं अमर हूं, तो मृत्यु का भय चला गया। न मरना है, न जीना है। तो ये क्लेश गायब हो जाते हैं। तो ईश्वर को ये 5 क्लेश नहीं है, ईश्वर मुक्त है इससे। तो ये है ईश्वर की डेफिनेशन पतंजलि के हिसाब से। इसमें ना कोई शिव भगवान आए, ना कृष्ण भगवान आए, ना राम भगवान आए, ना गणेश जी आए, कोई धर्म कुछ नहीं आया। कॉमन सेंस से लॉजिकली डिफाइन किया गया कि ये ईश्वर है, ये सुप्रीम पावर है, इसको अपने चित्त में बैठाओ। ये संस्कार पैदा करो ईश्वर का अपने अंदर, और उसके प्रति कमिटमेंट करो, उसको बढ़ाओ 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 बढ़ाओ। वो जब वो बढ़ जाता है ईश्वर अंदर, तब ईश्वर जीवन चलाता है, आप नहीं चलाते हैं। फिर वो कहते हैं अगले सूत्र में, ये शायद 25वां सूत्र है, कि उसको संपूर्ण ज्ञान है।
अब वो ईश्वर प्रकृति के बाहर है, फिर भी संपूर्ण ज्ञान है। अरे ज्ञान तो वस्तुओं का होता है, प्रकृति की चीजों का होता है, चित्त में होता है। वो प्रकृति के बाहर है, पूरा ज्ञान है। फिर वो बोलते हैं कि ये सबके गुरु हैं, हमारे पूर्वजों के गुरु थे। आज तक जितना भी हमको ज्ञान मिला है वो ईश्वर से मिला है, तुमको भी देगा, तुम्हारा पूरा जीवन पार कर देगा, तुमको पूरा रास्ता दिखा देगा। जो किसी को नहीं मालूम वो तुमको बता देगा, जो ज्ञान किसी के पास नहीं है वो तुम्हारे दरवाजे पे ले आएगा, क्योंकि उसको पूरा ज्ञान है। तो तुमको क्या करना है? तुमको उससे कमिटमेंट करना है, बस अपना कमिटमेंट बनाए रखो, बाकी सब अपने आप होता रहता है। अब कोई पूछ सकता है कि ठीक है, ये ईश्वर का कंसेप्ट तो समझ गए, इसको याद कैसे करें? तो फिर एक गजब की बात बोलते हैं, ये ईश्वर का जो रिप्रेजेंटेशन है ना, वो ओम है। कहता है ये ओम को कोई समझा नहीं है, ये मिस्टिक सिंबल है। क्या करना है? बोले ओम का आप जाप करिए, बस। और जब ओम का जाप करते हैं तो जो मैंने आपको ईश्वर के बारे में समझाया है ना, उस पर ध्यान रखिए कि हमारा जो ईश्वर है वो शरीर के बाहर है, वो प्रकृति के बाहर है, वो पूरा ज्ञानी है, वो मेरा गुरु है, वो मेरा पूरा पार करेगा। बोले इससे क्या होगा? बोले तुम्हारे अंदर की पूरी कॉन्शियसनेस खुल जाएगी, और बोले तुम्हारे माइंड के जितने भी प्रॉब्लम है सब गायब हो जाएंगे, तुम्हारा माइंड कंप्लीट पीस पे आ जाएगा। अब आप सुनिए, ओम का जाप करने से मेंटल सारे प्रॉब्लम चले जाएंगे, माइंड कंप्लीट पीस पे आ जाएगा, ईश्वर तुमको जीवन पार करा देगा। और किसको क्या चाहिए भाई? क्या चाहिए आपको? लिस्ट बना दी है उसके अगले सूत्र में, कौन कौन से माइंड की प्रॉब्लम सॉल्व होती है ओम का जाप करने से। आप सोच सकते हैं, 2500 साल पहले लिखा गया कि कौन कौन से माइंड के प्रॉब्लम ओम का जाप करने से सॉल्व होते हैं। हमारे साइकियाट्रिस्ट आज भी नहीं बोल पाएंगे। पहला शब्द यूज करते हैं डिजीज, मतलब बीमारी चली जाती है, क्योंकि आपका माइंड ईज में आ जाएगा तो डिस जो है वो गायब हो जाएगा, ईज हो जाएगा। दूसरा डाउट, आपके मन से डाउट निकल जाएगा, आपका बोर्डम चला जाएगा, आपका कंसंट्रेशन नहीं है आ जाएगा, आपको एक्सेसिव ऑब्सेशन हो गया चला जाएगा, आपको लेजीनेस है वो ठीक हो जाएगी, आपके अंदर में इनडिसाइसिवनेस है वो ठीक हो जाएगा, आपके अंदर में मेंटल इंस्टेबिलिटी है वो स्टेबल हो जाएगा। और क्या बोलते हैं? और बोलते हैं कि आपका दुख चला जाएगा, सौरो जो है ना, जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, हमेशा आपका साथी है, वो चला जाएगा। आपके मन में निराशा है वो चली जाएगी, आपके अंदर नर्वस टेंशन है वो ठीक हो जाएगा, आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। गजब गजब की बातें करते हैं। तो फिर मेरे मन में आया, मैंने रिसर्च करी कि ये ओम क्या चीज है भाई। मैं आपके साथ कुछ शेयर करता हूं, बड़ी बड़ी अस्टाउंडिंग चीजें हैं, आप भी नेट पे सर्च कर सकते हैं जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये अवेलेबल है, गूगल करेंगे ना पटक से आएगा। मैंने देखा ओम क्या है, तो सेकंड या थर्ड गूगल सर्च में आता है, 2 साइंटिस्ट लोग ने कुछ मेडिटेटर्स को जमा किया और ओम का उच्चारण कराया, ओम का चांट कराया। उन्होंने पाया, लेडीज भी थी जेंट्स भी थे, दोनों का रिकॉर्डिंग हुआ। उन्होंने पाया कि ह्यूमन का जो साइकिल है, साउंड सुनने का जो फ्रीक्वेंसी का रेंज है, वो 20 साइकिल पर सेकंड से लेके 20,000 साइकिल पर सेकंड तक है, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक है। वो पूरे रेंज में ओम बजता है, ओम का फ्रीक्वेंसी, और इक्वल पावर में, इक्वल एम्पलीट्यूड में, इक्वल वॉल्यूम में। इसका मतलब जितने मेरे कान की सुनने की क्षमता है, सारी फ्रीक्वेंसीज एक साथ स्टार्ट से लेके एंड तक एक एम्पलीट्यूड में, एक वॉल्यूम में मेरे कान के अंदर जाके रिकॉर्ड हो रही है।
क्योंकि मैंने आपसे कहा हर चीज रिकॉर्ड होती है, संस्कार अंदर रिकॉर्डेड है चित्त में, और जो भी संस्कार रिकॉर्डेड है वो मेरे कर्म बनते हैं। तो ये जब जा रहा है अंदर, ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये नया संस्कार बन रहा है। तो जितने भी संस्कार हैं, उन संस्कारों के ऊपर एक कारपेट बिछ जाता है ओम का, सारे फ्रीक्वेंसीज का। और जब एक कारपेट बिछ जाता है, पुराने संस्कार सारे के सारे दब जाते हैं। तो आपके पुराने जो कुछ भी है, चाहे वो बीमारी हो, डिजीज हो, चाहे वो सौरो हो, चाहे वो निराशा हो, चाहे वो मेंटल प्रॉब्लम हो, सब गायब हो जाता है। ये है ओम का मैजिक। साइंटिफिक है, डॉक्यूमेंटेड है, आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिए। और मजे की बात बताऊं, मेरे एक फ्रेंड है जो कि आईआईटी कानपुर में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर है। वो मेरे को बोले, संजय जानते हो ओम की मेडिटेशन कम से कम 5000 साल पुरानी है इस देश में। मोस्ट ऑथेंटिक, मोस्ट टेस्टेड मेडिटेशन है। बोला अच्छा। बोले जितने भी बड़े योगी हुए, ऋषि हुए, महर्षि हुए, संत हुए, अधिकतर लोगों ने ओम पे ही ध्यान लगाया। तो मेरे को एग्जाम्पल दिए वो दो। बोले शंकराचार्य ओम मेडिटेशन, स्वामी विवेकानंदा ओम मेडिटेशन, एक ओम का शब्द, और हम भटक रहे हैं। पतंजलि बोलते हैं, अरे भैया तुमको किसी कारण से अगर ओम नहीं जपना है ना, हो सकता है कोई बोले ओम तो हिंदू सिंबल है। हम तो बहुत प्रोग्रेसिव सोसाइटी है ना आज के डेट में। ओम तो हिंदू है भाई, वो साउंड भी हिंदू हो गया। ठीक है, हिंदू हो गया, बौद्ध हो गया, जैनी हो गया, सिख हो गया, मान लिया हमने अपनी बात। कहता है मेरे भाई मन को एक जगह लगा लो, ये सारी बीमारियां चली जाएंगी। मन को एक जगह लगा लो। तो बोले कैसे लगे मन, मेरा तो नहीं लगता। बोले तुमको जो भी चीज तुमको अच्छी लगती है ना तुम्हारे इंद्रियों को, उस पर ध्यान लगा लो। अब मान लीजिए मेरे को रसगुल्ला बड़ा पसंद है, मेरे इंद्रियों को अच्छा लगता है रसगुल्ला, मेरे आंखों को उसका गोल गोल शेप अच्छा लगता है, जब मैं उसको छूता हूं सॉफ्टनेस मेरे हाथों को अच्छी लगती है, स्किन को अच्छी लगती है, मुंह में डालता हूं मेरे जीभ को अच्छा लगता है। तो हमारे महर्षि पतंजलि कहते हैं, सुनिए ध्यान से, रसगुल्ले पे ध्यान लगा, मन शांत हो जाएगा तुम्हारा। क्योंकि योग क्या है, योग है योग चित्त वृत्ति निरोधा। मन को शांत करो और योग में चले आओगे। मन को शांत करो और तुम्हारी आत्मा खड़ी हो जाएगी तुम्हारे सामने, तुमको दर्शन देगी। मन को शांत करो, अपने अंदर के भगवान को पाओगे। तो रसगुल्ले से शांत कर लो भाई। बोले नहीं नहीं हम तो भैया रसगुल्ला नहीं नहीं कैसे होगा। बोला अच्छा एक काम करो। बोले मान लीजिए हमको एक काल कोठरी में बंद कर दिया और 20 साल की सजा हो गई आइसोलेशन में, तब क्या करेंगे। बोले मन को शांत करने के, सांसें चल रही है ना, सांसों को देखो बस, मन शांत हो जाएगा, योग हो जाएगा, तुम्हारे अंदर का ईश्वर जाग जाएगा, आत्मा का दर्शन होने लगेगा, इनफाइनाइट पावर आने लगेगा वहीं पर। ऐसे पतंजलि ने 7-8 तरीके बताए, और एक और बड़ा ताजुब का तरीका बताया। कहता है कि रात में नींद में अगर तुम किसी पुण्य आत्माओं को याद करोगे ना दिन में सोते वक्त, तो रात में वो आएंगी और तुमको ज्ञान देंगी, तुम्हारे जीवन को स्थिर कर देंगी, तुम्हारे मन को शांत कर देंगी। और कहते हैं और कुछ नहीं, तुम्हारा जिस चीज पे इंक्लिनेशन हो ना कि मेरे को ये करना है, ये चाहिए,
एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए मैंने तय कर लिया कि मेरे को मर्सिडीज चाहिए, मेरे को एक 50 लाख की मर्सिडीज चाहिए, ये पर्टिकुलर मॉडल चाहिए, मतलब उसी पे ध्यान लगा लो, मन शांत हो जाएगा। योग का डेफिनेशन सिंपल है, योग चित्त वृत्ति निरोधा, मन को शांत करना ही योग है। अथ योग अनुशासनम, योग एक डिसिप्लिन है जो नाव में करना पड़ता है, क्योंकि थॉट तो हमेशा है, तो आपको थॉट को मॉनिटर करना, थॉट को सुलाते रहना योग है। बस बस। तो इसी के साथ मैंने 1 घंटे का समय मांगा था पापा जेसी से, 5 बजे है। मैं अपना टॉक यहीं पे शेष करता, और आपको अगर कोई क्वेश्चंस हो तो मैं आंसर करने को रेडी हूं, और मैं कोशिश करूंगा जितना मेरा नॉलेज है, जितनी मेरी एबिलिटी है, उसके अनुसार मैं आंसर करूंगा। और अगर आप में से किसी से मैं सीख सकता हूं तो मैं सीखने को भी रेडी हूँ। आई मीन आई एम अ हम्बल लर्नर, मैं सीखना चाहता हूँ। और मेरा ये सपना है कि ये जो सिंपल सी चीज मैंने आपको बोली है, ये हमारी सोच हमारे साथ हरदम है, और हमको सिर्फ मन को शांत करना है। कोई रॉकेट साइंस की बात मैं नहीं कर रहा, ये हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और कुछ लोगों को इसमें हेल्प लगेगी तो हम लोग हेल्प करने को भी रेडी हैं। कुछ सेशंस करने पड़े तो अपने सेशंस भी करेंगे। और इस हमारे देश की ये ट्रेजर है, ये धरोहर है, ये ट्रू नॉलेज है, ये सच्चा ज्ञान है। इसको हम खुद भी प्रैक्टिस करें, अपने परिवार में भी करें, अपने यार दोस्तों में भी करें, समाज में भी करें। और मेरे को पूरा विश्वास है कि इसको अगर हम सही तरीके से करने लगेंगे तो हमारा देश जो है ना वापस 1 नंबर पे आ जाएगा, और बहुत सी चीजों से हम मुक्त हो जाएंगे। ओ थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी। और मैं अगर थोड़ा इमोशनली कुछ बोल जाऊं तो मेरे को काइंडली पार्डन करिएगा। पापा, thank you so much. It is all yours. Any way I can take it forward for you, please let me know. थैंक यू सर, बहुत भारी भरकम था एक्चुअली आपका जो पूरा सेशन था। इट वाज वेरी वेरी हैवी फॉर पीपल लाइक मी, बिकॉज हम लोग सोचे थे कि व्हेन यू सेड कि हम मेडिटेशन करेंगे, ऐसा लगा वो ऐसा मैजिक मिलेगा कि हम आज शाम को शुरू कर लेंगे, कि हम तुरंत पहुंच जाएंगे। But you are right in a lot of ways, because it is not possible, because we have actually been completely controlled by this mind control wala jo game, and it's very difficult to control. And now we understand why it is happening and how we have to do. अब संजय जी ऐसा है कि आपके माध्यम से we have understood the foundation, यानी कि we have made up a mind, एक mind we have understood कि where we were going wrong perhaps. My only request is if you could actually show us how to do the meditation. If there is any way of doing meditation, if there is any beginners course that we can have for meditation, I would request you to please guide us on that. And if it is possible from your end, we could do that 3 or 4 sessions early morning at a fixed time, because a lot of us want to do meditation, really learn meditation. A guided meditation जिसको बोलते हैं, where maybe you can tell us exactly how to move step by step, they take those baby steps to meditation. So that will be a great help. अगर आपके दिमाग में वैसा कुछ है, or if you could be a part of this platform, because in our platform we have lots of people coming from all over the country, and since they have given time, because they want to also get this insight into meditation and they're not being able to reach somewhere. So if you have something to offer, then we can offer to our platform members here, and we can do it on a continuous basis for 3 or 4 more sessions where they actually perform this act of meditation. Yeah, I think it is good, because unless and until it is practically done, it carries no meaning. Patanjali Yoga Sutra is not a theoretical book. It is a book of practice. And I think, yes, I'm in agreement with you. We must do a few sessions so that we introduce them to the absolute basics. You know, the first thing, I mean, before sitting in meditation is the body. The body must not come in between meditation. So we start with the basic, and we can do probably 4 sessions. I think Sunday would be a good day, Sunday morning. Let us do it.
I have a request that I'm making to all of us present here now. For now, if you are willing to join us on this session, which will be a free session, of course, for our platform, we will Sanjay ji को convince कर लेंगे हम. It will be a free session for everybody here. If you are willing to join on a Sunday morning, we'll do 4 sessions on 4 Sunday mornings. Finally, we are going to go to the end of the course or end of the journey of finally achieving meditation. But to start with, let us begin with this baby step of meditation. If you're okay with this, if you could share your yes. If you could share, yes, we have received a few of the yes, 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 yes. Now this is where we go. Now this is where we go. So exactly this is what we wanted. Now the participation is already beginning, which means that we can have a lot of us. These people will join in. If I can get an indication of time, I was thinking of a time of somewhere around 8 a.m. or 9 a.m. in the morning. If it suits you, 9 a.m. Sunday morning. 9 a.m. Sunday morning, if you can confirm, देखिए afternoon session में meditation आप कर नहीं पाएंगे. It is better that if you start early morning, 8 a.m. or 9 a.m. because a lot of people join from different parts of the world. So let us keep it around 9 a.m. on Sunday morning, 9 a.m. So Sanjay ji, we have got a lot of confirmation of 8 or 9. We'll figure that out. Okay. तो अगर आप हमको 4 session ही करवा दें, basic introduction to meditation. Okay. Perhaps हम लोग बहुत कुछ समझ पाएंगे and we will be able to use it in our daily life and practice. So Sunday करके क्या होगा? We'll get 5 or 6 days to practice ourselves and come back with the difficulties. And finally, at the end of the 4 sessions, we reach somewhere that we are being able to do. Okay. I have read your article which you had written that you have a burning desire of taking meditation to the level next and reach it to each and every corner of the world. What is this? Why you want to do this? What is happening? I mean, what makes you do or think like this? You see, the beauty is that we have a body, we have a mind, and we have a spirit. But the quality of the mind decides the quality of life I enjoy. And the quality of my mind is under my control. I can, you see the way I do physical exercises for my body. I go to a gym for my body, keep it trim. I take control of my diet to keep my body trim. I do a lot of things for my body. But what do I do for my mind? And everything is connected. Mind and body are connected. So what happens is once you are able to work on the mind, you're actually empowering the mind, empowering the spirit, and moving further up the scale. You know, life takes on a different dimension altogether. This whole world can change. We can go to the next level. We have to understand our machines have become artificially intelligent today. So if we don't move up, you know, we will get caught and it'll become a battle for survival. So we have to work on our mind, work on our intellect, use the power of the spirit, the Atma, and go up, go higher than the robots, take the level of life to a far, far higher level. And especially a country like India, where we have such a rich tradition, such a rich culture on this, such a rich knowledge, virtually at a very minimal cost, we will be able to create wonders for our country. You know, it is all going to be a mind game in the coming century, the coming next 70, 80 years. So let India dominate. Let India dominate. I think we have got some very good feedbacks on the message. I was seeing the chat box. I read a message from one of our very regulars and a good friend from Mr. Pradeep Bothra. He says, start with 4 sessions with basic knowledge of meditation and then to another set of sessions for higher knowledge and understanding. Now there is one Mr. Anil Mehta. He's saying about he seems to be connected with meditation. Mr. Anil Mehta, can I pull you up? Can I pull you up? I want to invite you for an interaction, direct interaction. अगर आपका video on कर लेंगे तो we'll exactly know what you are and who you are. Yes, that's better. So I am pulling you up on this chat. So spotlight for everyone. Let's hear from you. There, I want to unmute you. Yes, please unmute yourself. Yeah, unmute yourself. Yeah. Hi. I have a basic question. They say that one must do Jalneti, then Yogasan, then Pranayam, and then meditation. Now, if you need to, and also meditation should be done early in the morning. Now, if you have to do meditation early in the morning, you will possibly need to get up at 4 o'clock in the morning. Yes, early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise. But I think in today's world, it becomes very, very difficult.
That's the first question. The second is the whole world is materialistic and they will do everything to achieve materialism. Now, meditation is something antithesis of materialism. Yes, it will help you to overcome materialism. Let me let me answer your second question first. Yes. Without mind, you cannot have control over material. The quality of mind decides the amount of control you have over material. So that is one. A mind is always superior to material. Point number two, you're talking about the various process of doing yoga. Okay. I don't know who has told you this. I have given you a talk on meditation. I don't do any of this. I simply do meditation, and I do it whenever I like. Right? This is my mind, my body, my God, my spirit, my life. I do it at my own convenient time. If the goal of yoga is to give me absolute freedom, then how can it bind me in my practice? You know, you must read Patanjali yogas, because, as I was telling you, there's a lot of myth, a lot of misconceptions. It, uh, as I said, yoga is controlling the thoughts. That's all. So you see, if you are able to, if you have 5 thoughts, cut it down to 4, you are doing yoga. Are you getting me? There are a lot of misconceptions, tremendous misconceptions. So go back to the original document where it all started. A lot of things will get simpler, easy. Life will be easy, and you will enjoy. You will enjoy the whole path. Are you getting the answer correct, or you want to ask something else? Because you've been asking that question again and again. आप पूछना चाहे please पूछिए, because he is. I want him to be asked. I want him to be cornered with questions. Please do it, because I believe in one thing. You know what I have? When I started, the first thing when I spoke to him, I was very hesitant to use this term yoga. मुझे लगा योगा तो यार वो खड़े रह के ऊपर नीचे कूदना. He explained to me that yoga is nothing but gymnastics that we are understanding today, and he used it today several times. So that yoga that we do is nothing but we think of yoga as those asanas. Yes, of course, yoga is a little more beneficial because you keep yourself in a particular position for some time, and that strengthens the muscles and the bones both. Again, that is not yoga. So that is what he's trying to say. You are again mistaking it. I mean, the whole concept is being mistaken here. You are understanding yoga as those gymnastics. Correct. In his term, yoga is a yoga. It's a addition of finite and infinite. You add up. It's called the yoga. This is called the yoga, Bengali jog. So basically, what he's trying to say is that yoga is not that asana that you are trying to think. We imagine yoga as an asana. Snigdha ji, I am unmuting you. Snigdha ji, aap unmute kar le, please. You ask your question. Yes, sir. So it was really a dream come true for me, because I had started practicing that stability in the postures to such an extent where I don't have to involve my mind at all in what I'm doing, and gradually I feel very spiritually inclined to some cosmic connection. I mean, it is superb, sir, superb. In the lockdown I've been practicing, and to some extent have been able to feel the stability right. And so I got introduced to this by one teacher from Vietnam. Okay. And he's this Bengali gentleman who lives in a small village in Bengal, and he got stuck because of COVID. And my good luck that I was able to contact him, and he introduced this thing in my life that yoga doesn't mean a bunch of exercises and all. It is far deeper than that. So that is how I was introduced to this. But he told me, sir, that I may not be able to read Patanjali Yoga because it is written in Sanskrit. And he made it sound quite inaccessible, like for a person like me, a lesser mortal. I mean, I don't know Sanskrit, honestly. And so how do you, can you please help me understanding how can I proceed from here? Like, I'm actually interested in this. I will tell you a very shocking thing. Just listen to me. It is for the entire audience.
Yes, The sir. best book on Patanjali Yoga Sutras has been written by an American in English. Number one. Okay. Okay. Number two, as I was telling Papaji also, that out of every 3 homes in America where they practice yoga, one of them has Patanjali Yoga Sutras. So that is the Bible of yoga. Okay. Sure. It is the Bible of yoga. And if you are a keen student, you must read Patanjali Yoga Sutras. There are many authors in English. Okay. It is up to you. You can So surf the net. the one which was a changer in your life, a game changer in your life, sir. If you think that we can access to something which was, which you No, found you very see, no, I'll be very frank with you. The book which I got introduced first is a book which I don't read today. Okay, we go through our own cycles of growth, right? So I would like you to choose. You will get an inner answer. Key, which book is right for you? It is available. You can go to Amazon. You can go to Flipkart. You'll find number of books there. Indian authors, foreign authors. There's even a book by Swami Vivekananda on Patanjali Yoga Sutras. If you're looking for a very spiritual version. So if you're looking for a very academic version, then the foreign authors are there. If you're looking for a version from the Swamis of India, then there are many Swamis who have written. If you're looking for video series, a lot of videos are available. But it has to be experienced. Knowledge will not help. It has to be Yes, experienced. sir. Yeah. Yes, sir, I understand that from my practices. Like he even said that you can make your involuntary functions, like everything can become voluntary, like how you take your breath. That's how our saints lived for 300 to 400 years, because every function of the body was voluntary. So I'm listening to him and I'm trying my best to. Yeah, Thank yeah. you very much, sir. It was really a pleasure, Sure. and I really appreciate. You are one of the person जो थोड़ा आग में हवा दे रहे हैं, so that the flame goes up. Thank you so much. These are your स्निग्धा जी, आप कहाँ से हैं? sanskaras Where are you joining? which have आप brought कहाँ us से together. Yeah. Oh, sorry. स्निग्धा जी, आप कहाँ से हैं? You joining from which part of the world? No, I'm in Calcutta, sir. Oh, very good. So you're from Calcutta. And since you are already practicing meditation on a regular basis, so if you have understood this language of him, I'm sure the others will also relate with it at some point in time. Because for starters, for the beginners, it was so much to absorb in one go. Because normally when I go to a session, my own session I go to, we don't do any practice. So I go like this. Let's see what we have to hear. Though when I heard the whole atom bomb talking, it was a proper atom bomb of a discussion where we had the presentation from him. So much to listen, so much to understand on this topic. आज मालूम है हम लोग के बारे में अगर हम लोग को बताया जाए कि ये क्या बोलते हैं महाभारत का सेशन है या रामायण का सेशन है तो हम लोग को पता है what we are getting into. But yes, sir. We still don't know our body. We don't know our own potential yet. We've not been introduced to ourselves yet, and that's why we are in full strength. That's perhaps what he has done today. He's given us our own introduction that we have to find the Ishwar within us without doing much of gymnastics. Thank you. I appreciate Papa JC for bringing this wonderful session. Bye-bye. Thank you so much, Snigdha ji. We'll see you again. Pradeep ji, unmute yourself. आप क्या पूछना चाहते हैं? संजय जी, मैं नमस्कार. नमस्ते. कुछ मिसकंसेप्शंस की बात हो रही थी. मैं कुछ जिंदगी के मेरे जो अनुभव है मैं आपसे कुछ क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ. बोलिए सर. आपने भी बहुत सी बातें कही, उसमें मेटेरियलिस्टिक बातों के किसी ने जिक्र किया, तो माइंड इज ऑलवेज ओवर द बॉडी. मेरा ये विश्वास है. और माइंड ठीक है, इट विल डायरेक्ट यू टू हाउ टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी. But if your body is all right and mind is not, it doesn't happen otherwise, vice versa. Is that true, sir? Dekhiye, I'll tell you something very surprising. Okay. As per Sankhya theory, as per yoga theory, we have a Purusha. Purusha means the Atma. And we have the Chitta. Chitta means the Buddhi, the Ahankara, and the Manas. And then we have the Indriyas and the Panch Mahabhutas outside, the world outside. Now, this Buddhi, this Chitta, it has the sanskaras recorded inside.
And whatever is recorded inside is playing out like a movie. And we, like an Atma, like a person in a movie hall, are seeing our life movie on the screen without any control. Are you getting me? The sanskaras are playing out on their own like a movie. We, the Purusha, the Atma, is watching it on a movie screen, our own life story, without any control. So we have to understand it from that perspective. When they say ki we have agyanta, we do not know who we are, that is the cause of our problem. So once we realize that I am just a drashta, I am a seer, I am simply seeing, and the rest is happening, then a lot of issues get sorted out. Yeah. So your question can come under this category, and the answer will come to you. Yeah, I hope I have answered your question. Yes, I do understand. और एक जो ये आजकल धर्म की बात होती है कि ओम जो हिंदू नहीं है वो क्यों बोले, तो मैंने अपने जिंदगी में इसको बड़े डिफरेंट वे से टैकल किया है कि मेरे क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं, मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, उनको मैंने कहा है कि तुम एक शब्द का इस्तेमाल करो जो तुम लोग करते हो, जैसे इंग्लिश में आमीन कहते हैं और उर्दू में आमीन कहते हैं. तो आमीन और आमीन और ओम में इतनी सिमिलैरिटी है, जहां उनको ये बोला वो उनको बिल्कुल एक्सेप्ट हो गया. And it does the same job. Would you agree, sir? देखिए साहब, we are talking about a scientific fact. मैंने आपको बोला कि अ उ म जब अपने प्रोनाउंस करते हैं तो साइंटिफिकली देखा गया है कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है सेम वॉल्यूम में, और जो कि हमारा कान का सुनने का फ्रीक्वेंसी रेंज है, और वो अंदर जाके उन संस्कारों के ऊपर कारपेट की तरह बैठ जाता है, पुराने संस्कारों के ऊपर, है ना. अब ये जो भी ऑल्टरनेट आप बोल रहे हैं, ठीक है, वो रिलीजन के हैं, रिस्पेक्टफुल वर्ड्स हैं, तो वो क्या साउंड्स क्रिएट कर रहे हैं? अगर सिमिलर साउंड फ्रीक्वेंसीज क्रिएट कर रहे हैं तो डेफिनेटली यस, व्हाई नॉट. पर्पस क्या है कि जैसे मैंने कहा कि हमारे संस्कार प्ले आउट. आपका इंटरनेट थोड़ा गड़बड़ है संजय जी, आर यू देयर? इज ओके, Now he is. Now he's okay. You're back. आपकी इंटरनेट गड़बड़ थी संजय जी. You were off for a few seconds. So basically, what you said was sounding. प्रदीप जी, आपने नोटिस किया एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई. बोलते बोलते what he said was कि हम लोग ने actually अ उ म को जो उच्चारण से जो whatever we get, if you can get that same, I think very beautifully he has explained it. Pradeep ji, what is your, because you are one of those regulars to our shows and you've been very carefully, critical and particularly, observant to everything. What is your opinion on this particular? No, this is very correct. और एक मैं इंटरेस्टिंग बात कहूंगा कि कोई आदमी कहे कि योगा सीखोगे, तो बहुत आदमी आजकल कहते हैं क्यों वगैरह वगैरह. लेकिन आप किसी से पूछें बिलियनर बनोगे, वर्ल्ड के टॉप बिलियनर्स में तुम्हारा नाम हुआ तो चाहोगे, तो I think most of the people will agree. But if we go through the list of the billionaires in the world today, many of them are early risers and they do meditate between 4 and 5. And at that point of time, whenever I have practiced, I get wonderful ideas, which helps me to use it in my materialistic life also and spiritual life also, both. And the ideas suddenly come at that special hour. So those who want materialistic success should also practice it because it works for other billionaires. Your take, sir. Yeah, Snigdha ji, आप कुछ पूछना चाह रही थी? You raised your hand. No, I just wanted to add one very interesting fact to Om. It is a sound of the sun, and it was caught by NASA, on the machine. That is a sound that is made by the sun. So it is very interesting, sir. It is very powerful and very energetic. It creates its own field. So that was one interesting fact. I just felt it would make Pradeep ji a bit, more. I mean, you would say Om more often. No, I do. I practice it every day. Right. But So for the non-believers people to understand something, you have to explain sometimes in a way they understand, then to come to the right track. Okay. Yeah, maybe, but this is something which has been accepted by NASA too, sir. That it is the sound of the sun and the most powerful thing in the universe.
Let us bring this session to a draw now, because I feel that we have understood, or rather made a foundation for the meditations to begin, which will begin from next Sunday, as we have all agreed to join. Timing was decided between 8 or 9, whichever is suitable to all. We will do it accordingly. In the meanwhile, I must thank Sanjay ji for a wonderful session. You were a dynamite today. Thank you. You are a Thank you. complete thorough dynamite. आज हमने जो सीखा आपकी जो अच्छा एक बात आपसे पूछनी थी. You were very उत्तेजित. You were sounding. You have two types of situation today. एक तो बहुत उत्तेजित थे शुरू में. When you were saying that, you were very good. That energy level was like at its peak that time. How do you do that? I mean, you were constantly on that mode for almost about 1 hour. I was observing. Is it because of the meditation that you do that you had this energy level? You see, when you get connected, then the power with whom you get connected starts speaking. Okay. And when you leave the connection, then you are back at normal. So, so it was an inspired talk. He had a purpose for me to give that talk. It was not a prepared talk. And coming on Om, because Snigdha ji pointed out about the sound of the sun, I would just like to give some very important 2-minute information here. When you say Om, okay, the right way of saying it is you have to pull in the stomach inside, the navel inside with the and it goes inside. And the air gets pushed up. So it goes through the pipe, it goes up, and then it comes out through the mouth. And then you come to the ma. When you come to the ma, you close your mouth. So it resonates inside. It's a vibration. You must feel that vibration. So it's like a bellow. The stomach is like a bellow. It pushes it in, it comes up, and then you close your mouth and the vibration comes here. If you're able to feel the vibration here at this point, then something fantastic is happening. There is a pineal gland there. And that pineal gland normally is dormant. It is covered by calcium compounds, something similar to our bone structure. But when it starts vibrating on a regular basis, the calcium compounds disintegrate and the pineal gland becomes active. And the pineal gland is supposed to be Sanjay ji, आपका इंटरनेट थोड़ा गड़बड़ है. You have again disappeared. सुजाता जी, आप कुछ पूछना संजय जी, आपका इंटरनेट थोड़ा गड़बड़ था. आप कुछ अच्छा बता रहे थे, but you went off suddenly. Am I back? Yeah, you're back. You're back. या तो कहां तक सुना तुम लोगों ने? I don't know. Pineal gland की Pineal बात कर. gland. Okay, so this pineal gland is covered with calcium compounds, right? Or with this vibration, those calcium compounds open up, they disintegrate, and the pineal gland becomes active. And when this gland becomes active, it has got power to transmit and receive, and then you are into a spiritual dimension. So that is the significance of Om. It has to be done in a proper way so that the vibration comes to the pineal gland. Yeah, so that's just what I wanted to share with everybody. सुजाता जी, आप कुछ पूछना चाह रही थी. Let us sum it up with your question. Surely. Thank you so much for giving me the chance. Sanjay ji, it was very enlightening to hear your experience, especially for me, कि आपने 1 मिनट में या 3-4 दिन में कैसे अनंतनाथ तक पहुंच गए. That's a blessing, I would say. I am initiated into Kriya Yoga. And आपने जो भी बोला, थोड़ी बहुत मुझे जितनी समझ है, समझ आई. मुझे एक प्रश्न बार-बार बहुत परेशान करता है कि ये सारा अपना कल्चर है, अपना इंडिया से ओरिजिनेटेड है, बट आजकल वेस्टर्न वर्ल्ड में ज्यादा अडॉप्टेड है. आपने अभी भी जो समझाया, this is very well adapted in the Western meditation as resonant tuning. और तो ये ऐसा मतलब हम इंडिया में इसको भूलते जा रहे हैं और ये वेस्टर्न कल्चर में बहुत ज्यादा अडॉप्ट हो रहा है और उनके हिसाब से अडेप्ट हो रहा है. नहीं, मैं आपसे 100% सहमत हूँ. और जैसे पापा ने ये शो ऑर्गेनाइज किया, आई थिंक वी मस्ट ऑल बी एक्सट्रीमली थैंकफुल टू हिम. एब्सोल्युटली. या फॉर गिविंग मी अ चांस टू प्रेजेंट दिस टू ऑल ऑफ यू. और यही एक कोशिश है कि हम लोग जब तक खुद नहीं करेंगे, खुद औरों को नहीं समझाएंगे, इसका मूवमेंट पैदा नहीं करेंगे, इसके अराउंड कम्युनिटी बिल्डअप नहीं करेंगे, इसके अराउंड एक्टिविटीज बिल्डअप नहीं करेंगे,
अपने नेक्स्ट जनरेशन को नहीं समझाएंगे, इट विल गेट लॉस्ट. वेस्टर्न वर्ल्ड को समझ में आ गया है कि दिस इज द की नॉलेज. हमको अभी समझ में नहीं आया, हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं. तो यही है. आई एम वेरी हैप्पी यू रेज दिस. तो आपको और हमको और पापा जी को और हम सबको जितने भी शो पे हैं, हम सबको मिलके इसको आगे बढ़ाना है. या इट इज आवर responsibility for our ancestors, for their knowledge. It's thousands of years old. You must remember that. Absolutely. Yeah. Thank you so much. In Thank fact, you. Thank Sanjay you ji, so आज much, आपको sir. छोड़ने का मन नहीं कर रहा है because we have actually enjoyed your session thoroughly. आज मजा आ गया because the way you are talking, the way you speak, the way you have the kind of in-depth knowledge that you have gives answers to almost 100%. मैंने बहुत कुछ clarities मिल जाता है इस पे. So, but we are not going to leave you. As we said, we are going to bring you back again for 4 more classes. Thank you so much, Sanjay ji, and thank you, friends, God once bless again. We will God meet bless you. again. Yeah. Let me thank each one of your participants. God bless each one of you. Let us move ahead on this path and let us transform ourselves. Thank you so much. Let us meet again. Thank you, sir.